after a while now, right? To session 7 of chapter 4, linear equation into variables. Right. Previously, we solved exercise 4.3. In fact, we are solving it. Alright? Now, there are 3 word problems. Word problem number 4, 6 and 7. Alright? To answer them well with understanding, you will have to have knowledge of variation. आपके पास वेरिएशन का नॉलेज होना चाहिए. So today I am going to explain to you the concept of variation. Variation क्या है? Children, it will be enjoyable. आपको मजा आएगा. Alright? चलिए. When length of a rectangle is increased. Look here. ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ऑलराइट. दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका ब्रेथ सेम है, लेकिन मैंने लेंथ बदल दिया. तीसरा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, उसका ब्रेथ सेम है, बट लेंथ मैंने बदल दिया. जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर and this breadth is 4 centimeter. This length is 5 centimeter. Breadth still remains same. I have not changed the breadth. 4 centimeter. And this length is 15 centimeter. Okay. How many triangles have I drawn? Sorry, rectangles have I drawn? Yes. This is 1, this is 2, and this is 3. Now my question is, are they having the same areas? No. Very good. Say loudly. Yes. No. They will not have the same area. क्या बात कर रहे हो? मैंने तो breadth 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. Breadth तो same रखा है मैंने. I have kept the breadth constant, uniform, and still you are saying the area is changing. Area will be different. Can you tell me the reason why? Because lengths are different. So when breadth is constant, area depends on length. Area is changing because the length is changing. Breadth is not changing. Are you getting me? आपकी समझ में आ रहा है? ये 3 रेक्टेंगल में से कौन से रेक्टेंगल की एरिया हाईएस्ट होगी? Third. Because the length is maximum. Or which rectangle will have minimum area amongst these 3? Second one, you can easily say that. Because breadths are same. Oh, bigger the length, bigger will be the area. Smaller the length, smaller will be the area. So there is a relationship between the area of rectangle and the length of the rectangle. दोनों को बीच कोई संबंध है. लेंथ बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है. If length decreases, area also decreases. So मतलब when one quantity, that is length, is changing, the other quantity, that is area, is also changing. Such a relationship between two quantities is called variation. जब एक क्वांटिटी बदल रही है, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में बदलाव आता है, then the relationship between the two quantities is variation. ठीक है. आप लोगों ने बोला कि यहाँ एरिया सर बदल रहा है क्योंकि लेंथ बदल रहा है. अब मैं लेंथ नहीं बदलूंगा, लेंथ में वही रखूंगा. देखा, मैंने लेंथ वही रखा. कितना? 15 सेंटीमीटर. लेकिन ब्रेथ मैंने 8 सेंटीमीटर कर दिया. Alright, and this is rectangle number 4. You have told me because the length is changing, area is changing. So now I kept the length constant, 15 centimeter, 15 centimeter. What do you have to say now? Is area changed here? Yes. आप बोले कि लेंथ बदलेगा तो एरिया बदलेगा. मैंने लेंथ नहीं बदला तो एरिया नहीं बदलना चाहिए. Then how is that the area is changing?
Because the breadth is changing. So now, when breadth changes, area changes. Because the length is kept constant. आपके समझ में आ रहा है? Okay. एक और. I'm not changing the length, but I'm changing the breadth. वो 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर. Are you getting me? So what do you say? ये तीनों की लेंथ जरा समझ लेना, छोटा बड़ा दिखाई दे तो. Be careful. So area is changing. What have I kept constant here? Length. 15. But because breadths are changing, area changes. So this time area changes because breadth changes when length is kept constant. But in this 3 rectangles, breadth are kept constant, but areas are changing because. तो उसका मतलब क्या हुआ? In rectangle 1, 2 and 3, you can say breadth is constant and area depends on length. In figure 3, 4 and 5, the length is constant, but still the area is changing because breadth is changing. कौन सी क्वांटिटी 2 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है? एरिया. हाँ. अब देखो, here length increases, तो area also increases. If length decreases, area also will increase. Here also you can realize, if breadth increases, area will increase. And when breadth decreases, area will increase. Such a relationship is called variation. Variation तो है. When one quantity changes, the other quantity also changes. Then that relationship between the 2 quantities is called variation. Lekin when one quantity increases, that brings increase in the other quantity, and when one quantity decreases, that brings decrease in the other quantity. बदलाव सेम लाता है. Increase, decrease. This is called direct effect. ये direct effect है ना? मेरे साथ जो हुआ वही आपके साथ हो रहा है. So that is direct effect. इसलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. सो वेरिएशन का फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन. क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन. अब देखो जरा सुनो और समझो. breadth place, I'm putting the symbol only. B equal to constant. For what? First 3 figures. B is equal to constant. And area is in direct variation. Area is in direct variation with length. Area is in direct variation with क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है. सो सच एक में बदलाव आ रहा है तो दूसरे में बदलाव आ रहा है, तो उनको वेरिएशन तो जरूर है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ बदलाव, व्हाट टाइप ऑफ चेंज? वन इंक्रीजेस, अदर इंक्रीजेस, वन डिक्रीजेस, अदर डिक्रीजेस. That is called direct variation. So what is the relationship between the area of rectangle and the length of rectangle? Direct variation. So I wrote in words. A is a symbol used for area. L is a symbol used for length of the rectangle. Now A is in direct variation with L. That can be written symbolically as A is proportional to L. A is directly proportional to L. इसको हम proportional बोलते हैं. A is directly proportional to L. कब? When breadth is constant. When breadth is constant. अच्छा. Area is in direct variation with B. Yes, with B. When length is constant, and that we can write symbolically as area is proportional to B. बांगड़ू, यहां एरिया एक ही क्वांटिटी है. वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इट डिपेंड्स ऑन एल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं,
area is in direct proportion या variation, proportion या variation with बोलो प्रोडक्ट ऑफ L and B, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ length and breadth. So how will you write symbolically? Area is proportional to L into B. यहाँ दो नहीं, तीन quantities involved है. Area of rectangle depends on length when breadth is constant, and it depends on when length is constant. So in short, area is dependent on two quantities, length and breadth. दो से ज्यादा क्वांटिटी वेरिएशन में इन्वॉल्व हो गई तो उसको कहते हैं कंपाउंड वेरिएशन. उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड वेरिएशन. कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, बढ़ जाना. राइट? आपने यूनिफॉर्म पहना है, वहां मस्त लोगो है, लेकिन और डिजाइन कर दे. शादी में जाते हो तो कैसा सब कितना डेकोरेशन करते साड़ी पे या दुल्हन का जो गाउन होता है या व्हाटएवर, पूरा भरचक भर देते हैं. कार को भी फ्लावर से पूरा भर देते हैं, अंदर कोने दिखाई नहीं देता, सिर्फ फूल दिखाई देती है. कार है या फूल है या कोई झाड़ है, प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, पता ही नहीं लगता है. मेरा कहने का मतलब कंपाउंड कर दिया. क्या कर दिया? मतलब बढ़ा दिया आपने, बहुत कुछ कर दिया. तो यहां दो से ज्यादा है मतलब बहुत कुछ है, उसको इसलिए कहते हैं कंपाउंड वेरिएशन. डिड यू अंडरस्टैंड? दो और वेरिएशन है और उसको अच्छी तरह समझना है. आई होप यू अंडरस्टूड टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? यस, a relationship between two quantities in which when one quantity changes, the other quantity also changes. Is known as variation. What is direct variation? A relationship between two quantities in which when one quantity increases, the other quantity also increases. And when one quantity decreases, the other quantity also increases. It's called direct variation. फिर compound variation किसको कहेंगे? When a relationship between more than two quantities is in variation, then such variation is known as compound variation. A relationship between more than two, a relationship in which more than two quantities are in variation, or कोई भी variation हो, are in variation, is known as compound variation. वो और है, समझते हैं. Let's see. उसमें भी मजा आएगा. एग्जाम्पल देख लो जरा. ये मार्विन है ना, उसका फादर ने उसको 3 लाख की बाइक दी. बाइक 3 लाख की, मोस्ट मॉडर्न. ऑलराइट. और वो अपने गांव 200 किलोमीटर दूर ऐसे ही घूमने चला गया, प्लेस ए टू प्लेस बी. प्लेस ए टू प्लेस बी कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर. राइट. वो हर संडे जाता है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी घूमने के लिए. ऑलराइट. तो पहला संडे वो नई बाइक थी ना, इतना अनुभव नहीं था. सो विथ 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो गया. स्पीड मैं दिखा रहा हूं यहां. स्पीड कितनी है और टाइम कितना लगेगा, कोई बता सकेगा मुझे? 5 hours. 5 hours. कितना लगेगा? इसका मतलब देखो, टाइम और डिस्टेंस है ना. 1 hour 40 किलोमीटर. So 200 kilometer, how many hours? So 1 into 200 divided by 40. So 5 hours. कितना टाइम लगा? 5 hours. Next Sunday, during his trip, उसने स्पीड बढ़ा दी 50 किलोमीटर पर आवर. 4 hours. समझ में आ गया ना? अब थर्ड संडे
उसको बहुत काफी अनुभव हो गया, वो रास्ता भी जाना पहचाना हो गया, उसने सीधा 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भगाया। 2 आवर्स है ना। अब देखो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड फ्रॉम 40 to 50, फ्रॉम 50 to वेरी क्लियरली, यहां से ऊपर से नीचे जाओ, द स्पीड इज लेकिन टाइम इज, जैसे स्पीड बढ़ाता है टाइम कम हो रहा है। सो व्हेन स्पीड चेंजेस, time also changes. That means speed and time are in variation. But when speed increases, time decreases. All right. Yes. Next Sunday, पता नहीं किसको बिठा के ले गया, उसने स्पीड बहुत कम कर दी, 20 किलोमीटर पर। ग्रैंड मदर को लेके बिठा के लेके गया, ग्रैंड मदर 10 आवर्स। बोला भाई स्पीड फ्रॉम 100 to 20 डिक्रीज हो गया, तो टाइम 2 घंटे से 10 घंटे हो गए, बढ़ गए। आफ्टर 10 आवर्स ही विल रीच द डेस्टिनेशन प्लेस बी। आर यू गेटिंग मी? सो स्पीड और टाइम, लेकिन हमने क्या कांस्टेंट रखा है? डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है। आर यू गेटिंग मी? व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज in variation. Speed is in variation with time. लेकिन when speed increases, time decreases. When speed decreases, time decreases. This type of उल्टा हो रहा है, ये तो inverse हो रहा है. That's why it is called inverse variation. उसको कहते हैं inverse variation. I hope you understood. यहाँ ऐसे लिखते हैं speed. स्पीड का ओके, स्पीड का सिंबल v है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। स्पीड का सिंबल v इज प्रोपोर्शनल, टाइम का सिंबल t है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऐसे मैं लिख दूं तो उसका मतलब तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अभी t का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, 1/4 का इनवर्स 4/1। तो t का इनवर्स कैसे लिखोगे आप? 1/t. Yes. So this is how you write symbolically. Speed is inversely proportional to. नहीं, 1/1 नहीं बोलना। Speed upon time. अरे घोंचू क्या बोल रहा है? Look, speed is inversely proportional to time. Inversely है इसलिए हमने लिखा 1/t. अब ऐसे मत बोलो कि speed is proportional, inversely proportional to 1/t. ऐसे मत बोलो, speed is inversely proportional to time, तभी तो 1/t लिखा है। सो हमने थर्ड वेरिएशन भी सीख लिया, एक और है, और that is what we require in I think 2 of those problems. Let's see. अब देखो, and it is the most interesting among all these 4 types of variation. चारों वेरिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन द सेंस वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। ऑलराइट, क्या नाम है? विश्वा। विश्वा, her birthday is approaching next month. ऑलराइट, उसकी बर्थडे है। अब 2 साल से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की अच्छी तरीके से, अभी कुछ conditions are favorable, all right, people can gather. So Vishwa told her father and mother, all right, कि मम्मी पापा इस बार मुझे ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है। पेरेंट्स एग्रीड, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। बट फादर सेड, बेटा आई एम वेरी बिजी विथ माय ऑफिस वर्क, सो एवरीथिंग यू विल हैव टू डू, पूरा प्लानिंग, ओके, खाना के लिए महाराज के पास जाना, कुक के पास जाना, सब काम आपको करना है, इनवाइटीज का लिस्ट आपको बनाना है। ऑलराइट, एंड विश्वा सेड ओके पापा, आई विल डू दैट वन। पापा ने बोल दिया, चल विश्वा पहले लिस्ट बना ले। विश्वा ने बोला पापा को कि पापा यू जस्ट गाइड मी, आई विल डू एवरीथिंग, यू जस्ट गाइड मी। पापा ने बोल दिया कि बेटा लिस्ट बना लो। She started making list.
she wanted to invite many, so she made a list of 200 people. पूरा क्लास, फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोसाइटी, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग. So she made list of how many students? I mean, how many invitees? 200. पापा को बता दिया. पापा ने बोला ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी. ना हम लोग फूड मतलब क्या डिसाइड करेंगे? मेनू. पूरी डिश में कौन कौन सी आइटम डालनी है, तो वो भी डिसाइड कर लिया. मम्मी, पापा और विश्वा ने बैठ के डिसाइड कर लिया. और कोई मेंबर भी घर का होगा तो उसके साथ भी बैठ के डिसाइड कर लिया. ऑलराइट. अभी पापा ने बोला विश्वा, यू गो एंड विजिट द कुक. महाराज को मिलकर आओ और बताओ ये मेनू है और कितना खर्चा होगा. यू अंडरस्टैंड? कितना खर्चा होगा. ओके. महाराज के पास गई. नंबर ऑफ डाइनर्स, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ खाने वाले 200 है ना. ऑलराइट. और एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस. विश्वा गई, द बेस्ट महाराज, द बेस्ट कुक इन द टाउन. ऑलराइट. उसके पास गई, उसको बोल दिया ये मेनू है, डिश में इतनी सारी आइटम्स है. ऑलराइट. आपको 200 लोग का खाना पकाना है, सो कितना खर्च होगा? महाराज ने बता दिया. चुप. महाराज ने बता दिया 35,000 रुपीज. अच्छी वाली डिश है, बहुत सारी आइटम्स है, स्वीट्स है, बहुत कुछ है. अच्छा. तो महाराज ने क्या बताया? 35,000. ये विश्वा ने कहा ठीक है, बराबर, मैं मेरे पापा से बात करूंगी और आपको वापस मिलूंगी. अच्छा. Now she goes home, but she's also thinking spending 35,000 rupees on food for a birthday party is too much. वो घर गई, पापा को बताया, मम्मी को बताया कि 35,000 बोला. पापा ने बोला ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है ना, हम पूरी करेंगे. राइट. ओके. लेकिन विश्वा ने खुद बोला पापा मुझे बहुत ज्यादा लगता है. पापा ने बोला जो आपकी इच्छा है वो बता दो. तो she said cut down some of the invitees from the list. वो लिस्ट थोड़ा शॉर्ट कर देंगे. पापा ने बोला तेरी मर्जी. अभी क्या हुआ? उसने 100 कर दिया भाई. कितना कर दिया? 100 को निकाला. ये बहुत ज्यादा है. डू अंडरस्टैंड? पापा को बताया लिस्ट, नया लिस्ट. बेटा आप जैसे चाहो, अब आप महाराज को मिल के आओ, बताओ उसको. तो उसने बोला कि जरूरत नहीं है पापा, 17,500 आधा होगा. 17,000 आधा होगा. पापा ने बोला तुम जाके तो आ, महाराज को पूछ के तो आ. शिवा महाराज को बोला कि ये बहुत ज्यादा है. ओके. पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, ऐसा बोलेगी. खुद ने डिसाइड किया, ऐसा नहीं बोलेगी. पापा मम्मी मना कर रहे हैं 200 का. ओके. हम सिर्फ 100 का बनाएंगे. तो कितना खर्च होगा? एंड शी न्यू 17,500 इसका आधा. लेकिन महाराज ने कुछ और ही बताया. महाराज ने कुछ और ही बताया. बोला 20,000 लगेगा. विश्वा ने बोला महाराज फिर से कैलकुलेटर लो, कुछ कैलकुलेशन करो. 200 का आधा कर दिया तो 35,000 का आधा 17,500 होता है. महाराज बोला मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन ये बराबर है, आप पापा से बात करो. शी वॉज कंफ्यूज्ड कि ऐसे क्यों. ऑलराइट. शी वेंट. पापा को बताया. पापा ने बोला ठीक है, वो तो ऐसा ही होता है. समझाया नहीं क्यों होता है. बट शी इज एनॉयड. ये महाराज ऊंचा है, ज्यादा ले रहा है 2,500. उसने पापा को बोला मुझे और कम करना है, लिस्ट में और कम करना है. पापा ने बोला बेटा तू जो चाहे तू कर. उसने 50 कर दिया. और अब महाराज के पास गई. 20 का कितना होना चाहिए? है ना?
20 का कितना होना चाहिए? वो बता रहा है 12,500। महाराज ने क्या बताया? अब विश्वा को तो और ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। वो महाराज के साथ झगड़ा करने लगे, आप बराबर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा ले रहे हो। महाराज ने बोला सब ठीक है। फिर विश्वा ने बोला आप छोड़ दो, मुझे नहीं करना है। आप एक काम करो, मुझे किसी को बुलाना नहीं है, मेरे घर में 5 मेंबर है, मैं सिर्फ 5 मेंबर का खाना पकाना चाहता हूं आपसे। सिर्फ 5 मेंबर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मेंबर। अभी 50 का इतना है तो 5 का कितना होगा? 1 0 कट हो जाएगा और 5 2 जा 5 5 जा, है ना? कितना होगा? 5 का कितना होगा? 1250 होगा। कितना होगा? 1250। 1250 कितना होगा? 5 होगा। 10 टाइम्स लेस हो जाएगा, 1 0 कट हो जाएगा, तो 1250 रुपीज। तो विश्वा को पता है तो वो बोलेगा 1250 रुपया। अब महाराज ने तो बड़ा बॉम्ब ही फोड़ दिया। उसने बोला 5 जन का सिर्फ फैमिली मेंबर्स का बनाना है, ठीक है मैं बना दूंगा। यू अंडरस्टैंड? उसने बोला 5,700। क्या बोला? ये क्या है? एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। अब ऐसे क्यों हो रहा है आपको पता है? बिकॉज दिस जो नंबर ऑफ डाइनर्स को हम n कह देंगे। क्या? n फॉर नंबर ऑफ डाइनर्स। e क्यों बदल रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ डाइनर्स आर बट नॉट इन प्रपोर्शन, नॉट इन प्रपोर्शन। देखो है ना, 200 का 100 कर दे तो 35,000 का 70,500 होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां से पता लगता है कि द इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो रहा है, इट इज नॉट इन प्रपोर्शन, इट इज नॉट इन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस का 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक्सपेंस में 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 1 फिक्स्ड है, पार्ट 1 इज फिक्स्ड, it is constant, it is not changing, but part 2 changes, that is in variation. Part 2 is in variation with number of diners, with number of। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, total expense E is K for constant, I'll write A, चलो A for बोलो कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, प्लस बी दैट इज वेरिएबल पार्ट। वन इज कांस्टेंट पार्ट एंड अदर इज वेरिएबल। और ये जो सेकंड पार्ट है, इट वेरीज डायरेक्टली एज नंबर ऑफ डाइनर्स। जैसे नंबर ऑफ डाइनर्स बढ़ेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा। सो बी वेरीज डायरेक्टली एज नंबर ऑफ। जैसे खाने वाले बढ़ेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, है ना? सो बी वेरीज डायरेक्टली एज एन। अब ये वेरिएशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। सी दिस 7 इज ग्रेटर देन 5 बाय 2। इसको जरा समझिए। दिस इनइक्वालिटी इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी, हम 2 काम कर सकते हैं। जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से 2 निकाल दो, सब्ट्रैक्ट करो, या जो छोटी क्वांटिटी है उसमें 2 क्या करोगे? हाँ, छोटी क्वांटिटी में कुछ ऐड करो। ऐसा क्यों? ये हमारे जीवन में ये सीख लेना चाहिए। हाँ, इक्वल होना चाहिए, वो भी बात है, इक्वालिटी की बात है। और दूसरी बात, ये बड़े वाले से हम कुछ ले लेंगे तो बड़ा दुखी हो जाएगा, मेरे से किसी ने छीन लिया, और छोटे वाले को देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी किसी का छीनो मत, 2
उसको भी, वो भी खुश होगा और अपनी भी खुशी बढ़ेगी। चलिए, सो पाई छोटा है +2 कर दिया, 7 इज इक्वल टू, यहां एक चीज ऑब्जर्व करना है, इनइक्वालिटी इज कन्वर्टेड इनटू बाय एडिंग 2 टू द स्मॉलर क्वांटिटी। यहां इनइक्वालिटी नहीं है, यहां प्रोपोर्शनैलिटी है। यहां क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। बी बी ही रहेगा, एन एन ही रहेगा, लेकिन जो राइट साइड की क्वांटिटी है उसको किसी कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, where k is not equal to 0. So proportionality gets converted into by multiplying constant with n, the second quantity. Right side quantity से k से multiply करो, and what is k? It is some constant but not equal to 0. तो ऐसे, you understand? अब समझो, मैंने वहां बताया नहीं आपको, पहला रेक्टेंगल में लेंथ कितनी थी? 7 और ब्रेथ 4। एरिया कितना है? एरिया 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ना, area is length multiplied by breadth. Are you familiar with each other? Yes. Now please pay attention. Area is proportional to area is equal to KL. Area is equal to what is area? 7 posa 28. K we don't know, but length देखा ना, 7 से कुछ मल्टीप्लाई करो तो आपको 28 मिलेगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल तो होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ, एंड दैट इज कांस्टेंट के। आर यू गेटिंग मी? वेल, ये चैप्टर को समझने के लिए कम से कम 5 पीरियड चाहिए आपको, लेकिन मैं एक ही पीरियड में रैप अप करने वाला हूं, तो इसी तरह होगा। ओके, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अरे अंडरस्टूड नहीं, अभी तो मजा बाकी है, वो महाराज वाली, कुक वाली। ऑलराइट, अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं, पहले केस में एक्सटेंड्स ए प्लस, हाँ बोलो 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 बोलो, प्लस बी ना, बट बी इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू के। अच्छा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है। ये महाराज का प्रोफेशनल चार्ज, महाराज ने तमें बोला हो ने, એટલે પેલું શું નાખે, ખેસ જેવું નાખે ને ઉપર, ઓરેન્જ કલરનું, અને મોટો લાંબો ચમચો લઈને નીકળી જાય। હા, મહારાજનો ચાર્જ 5000 ફિક્સ છે। ભાઈ તમે કેટલા માણસનું બનાવવાના? એટલા માણસ। પ્રોફેશનલ ચાર્જ, he is by profession a cook, so એનો ચાર્જ આવે, ભાઈ તમે ગમે એટલાનું બનાવો, so this is 5000. what is that? constant professional charge of the cook. अच्छा, आ constant શું? that is the cost per dish. उसने जो 10-15 आइटम डिश में रखी थी, 150 रुपया एक डिश का, 150 रुपया एक डिश का, वो कांस्टेंट। और ये नंबर ऑफ डाइनर्स पहले बार 200 थे, सो बोलो 5000 प्लस 15 2 30 और 3 0, 30,000 प्लस 5,000, यही बताया था महाराज ने, है ना। अब देखो दूसरे केस में क्या हुआ। दूसरे केस में नंबर ऑफ डाइनर्स चेंज हो गए 100, लेकिन डिश का पर डिश कॉस्ट विल रिमेन द सेम, क्योंकि वही आइटम होने वाली है। सो पर डिश द कॉस्ट इज 150 और डाइनर्स 100। सो ये 30 का 15,000 और 15,000 प्लस 5,000 कितना हुआ? तो महाराज ने तो सही बताया था। तीसरा केस, आपने 50 कर दिया, नंबर ऑफ डाइनर्स 50, सो 15 5 75 और 2 0, और ये 5 प्लस 7 12,500। महाराज ने ठीक ही तो बताया था। फिर आपने 5 कर दिया,
तो ये 5 ही हो गए, तो ये 750 हो गया, तो ये 5750, 750, या मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, 5750। तो वेरिएशन तो जरूर है, चेंज तो हो रहा है, सो वेरिएशन तो जरूर है, लेकिन नॉट इन द प्रपोर्शन, थोड़ा ये प्रपोर्शन में चल रहा है, लेकिन ये पार्ट फिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल वेरिएशन। सो फोर्थ टाइप ऑफ वेरिएशन को क्या कहते हैं? पार्शियल वेरिएशन, उसको कहते हैं पार्शियल वेरिएशन। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड, द एक्सपेंस ऑफ द फूड is in partial variation with number of diners, with number of, मतलब उसके दो पार्ट होते हैं टोटल एक्सपेंस के, एक फिक्स, वो 5000 5000 5000 फिक्स, नंबर ऑफ डाइनर्स कुछ भी हो, आप एक जन का खाना पकाओगे तो वो 150 रुपए की डिश और 5000 महाराज का, सो 5150 रुपीज होगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना, क्यों भाई? तो वो प्रोफेशनली नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसका तो चार्ज होगा ही, है ना। दूसरा कि जो काम करने के लिए हेल्पर्स होते हैं वो तो होने वाले ही है, वो 500 हो, 200 हो, 100 हो, 5 हो, तो उसको हेल्प करने वाला जो भी होगा वो तो होगा ही, तो उसको तो वही सैलरी देनी पड़ेगी, यस टू पे दैट सेम। ओके, सो आप बोलेंगे कि कम है तो हेल्पर्स भी कम लगेंगे, जरूर लगेंगे, लेकिन इट वोंट मेक मच डिफरेंस, मतलब इतना फर्क पैसे में नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, चलो we'll take another example, all right, to understand partial variation. One more example. टाइम है हमारे पास, only 2 minutes चलेगा, we can conclude. Now see please, क्या नाम है? निशांक। निशाद, निशांक, DISHANK। निशान, निशांक। No. all right, दिशान, दिशान, all right, वो रेलवे स्टेशन के पास हर रोज आता है ट्रेन से और अपने घर जाने के लिए निकलता है, राइट, लेकिन वो सीधा कभी भी घर जाता नहीं है। ये रेलवे स्टेशन, पहले दिन वो कहा, वो सर्कल है फुआरा, पहले दिन वो रिक्शा में बैठा और फुआरा उतर गया, एंड दैट इज जस्ट 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, कितना है? 1 किलोमीटर, जस्ट 1 किलोमीटर। ओके, वो रिक्शा में बैठा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड ही पेड ₹12। ओके, ही पेड 9 रुपीज, कितना? 9 रुपीज, ही पेड 9 रुपीज फर्स्ट, ऑलराइट। दूसरे दिन वही रेलवे स्टेशन से टावर तक गया और वो 2 किलोमीटर, तो कितना रुपया होना चाहिए? 80, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 13 रुपीज, कम हुआ भाई, कम हुआ, कम हुआ। तीसरे दिन वो जुना थाना तक गया और ये 3 किलोमीटर हुआ, तो क्या होगा? 17 रुपीज, बाकी 9 3 तो 27 था, ऑलराइट, ओके। फिर वो ग्रीड तक गया और ये तो 6 किलोमीटर है, तो इससे डबल चार्ज 34 रुपीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ओनली 29 रुपीज, कितना होगा? यहां हम लोग फेयर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? फेयर, भाड़ू। इट हैज 2 पार्ट्स, ए प्लस, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और ये वेरिएबल है, ये दैट बी जो सेकंड पार्ट है, इट वेरीज एज द नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू हैव ट्रैवल्ड।
वो जैसे जितना किलोमीटर ज्यादा आप जाओगे उतना सेकंड पार्ट बढ़ेगा. अब b इज इक्वल टू k इंटू, सो यहां b निकाल दो. सो फेयर इज इक्वल टू a प्लस k. देखो ये जो फिक्स रेट है ना a, वो 5 रुपया है, विच इज कॉल्ड मिनिमम फेयर. इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम फेयर बोलते हैं. रिक्शा में बैठो तो मिनिमम फेयर आपको 5 लग ही जाता है. फिर कांस्टेंट, ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 4 रुपया, 2 किलोमीटर 4 प्लस 4 2 टाइम्स 4, 5 किलोमीटर 5 टाइम्स 4. तो ये फिक्स्ड है 4. और नंबर ऑफ किलोमीटर्स इन द फर्स्ट केस 1. So 1 into 4, 4 plus 5. In the second case 2. 4 2s are 8. 8 and 5. In third case 3 kilometers. 4 3s are 12 and 5. And in the last case 6 kilometers. 6 4s are 24 and 5. तो यहां हमें फायदा हो रहा है. The longer the distance you travel, there is much relief in the fare rent. ભાડામાં ખાસો ફરક પડે છે. Are you getting me? So here is another example of partial variation. All right, children. So we just understood today the concept of variation. Next time we are going to apply this knowledge while we solve the word problems of exercise 4.3. So see you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.